سب سے پہلے میں اپنے بھائی کاشف حمید اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی اور ان کو مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں موقع فراہم کیا کہ آپ سب لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھ سکیں اور اپنی بات رکھ سکیں۔ یہ جو سلسلہ ہے پچھلے ابھی ماہ مقبول گزرا ہے، اس میں پورے آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ قائد کی برسی کی وہ منعقد کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب یہ خود مختار جموں کشمیر کانفرنس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہاں میں بڑی مختصر اور سادہ سی بات رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا نظریہ یا ہمارا سٹینڈ بڑا آسان اور دو ٹوک ہے، اور ہم نے یہ قدرت سے سیکھا ہے۔ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا سٹینڈ ہے، وہ آپ کسی فاختہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کسی گھونسلہ بنانے والے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جو مرضی آفت آ جائے، جو مرضی جو ان پہ طوفان ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اپنا گھر، اپنا گھونسلہ کبھی اپنے دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ اپنی آخری سانس تک وہ اپنا گھونسلہ اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی پرندے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، چیونٹیوں کو دیکھ لیں، جب وہ گھر بناتی ہیں اور کتنی محنت سے وہ گھر بناتی ہیں، جب ان کا گھر کسی طریقے مسمار ہو جاتا ہے تو وہ پھر نئے سرے سے اپنی جدوجہد شروع کر لیتی ہیں اس کو جو ہے تعمیر کرنے کے لیے۔ تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہمارے ارد گرد دنیا کے نقشے پہ لوگ آزاد اور خود مختار ریاستوں کی اور ملکوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم آج یہاں جو ہے تعمیر کرنے کے لیے۔ تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہمارے ارد گرد دنیا کے نقشے پہ لوگ آزاد اور خود مختار ریاستوں کی اور ملکوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم آج یہاں اس دور میں بھی، ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی، ہم اس قدر مجبور ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہمارا نقصان کس میں ہے۔ اور ان تمام جو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے پیچھے جو عناصر ہیں، ان کو گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، ان کا گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو گلی کوچوں میں جا کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ان کا گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قبضہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم اس کو گلوریفائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو جتنا مرضی خوبصورت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن قبضہ قبضہ ہی رہتا ہے، اور قبضہ لعنت ہے۔ اور جنہوں نے یہ قبضہ کیا ہے پچھلے 75 سالوں میں، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو چنا، ان کے مفادات، ان کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک ایسی لسٹ بنائی، ان کے لیے ایک ایسا ڈائیگرام بنایا کہ جس کے اندر وہ پورے اترتے تھے، اور وہ مختلف علاقوں سے انہوں نے ان لوگوں کو چن کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نسل در نسل وہ چلے آ رہے ہیں قبیلوں کی شکل میں، وہ جو ہے وہ برادریوں کی شکل میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ وہ آپ کو اس طرف بھی ملیں گے، وہ آپ کو سرحد کے جو سیز فائر لائن ہے اس کے اس طرف بھی ملیں گے، اور دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ کشمیری اس طرف کے جو ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس طرف والے بتاتے ہیں کشمیری ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں سے آگے کبھی کسی نے پوچھا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ اس ریاست کے اندر اس وقت 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو حق اور سچ کی بنیاد پہ ہے، ایک نظریہ وہ ہے جو کروڑوں لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، اور وہ نظریہ خود مختار کشمیر کا نظریہ ہے، اور 2 نظریات ایسے ہیں جن کو زبردستی اس قوم پہ لاگو کیا گیا ہے۔ وہ الحاق ہندوستان کا
पाकिस्तान का नजरिया है और वो बोगस नजरियात हैं। हम इन नजरियात को गली कूचू में हर जगह जो है वो बोगस साबित करते आए हैं और करते रहेंगे। हम अपने नजरिए को इसलिए सच्चा नहीं कह रहे कि हम उस पे कारबंद हैं, हम उसको सच्चा इसलिए कह रहे हैं कि वो सच्चा है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी माँ से, अपनी धरती माँ से प्यार करना सिखाता है, वो आपको अपने वतन से वफादार रहना सिखाता है। और जो बाकी हैं वो आपको दो नजरियात, वो आपको गला से चाटने का नजरिया है, वो आपको मजबूर करेंगे कि कभी आप जो है वो इस्लामाबाद की गोद में जाके बैठ जाएगा और कभी आप जाके दिल्ली की गोद में बैठ जाएंगे। और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बरादरियों और कबीलों की सियासत करके यहाँ पे जो हुक्मरान चुने जाते हैं, जो यहाँ पे उनके अदाकार और सहूलतकार चुने जाते हैं, वो हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि कब्जे की शक्ल में हमारे वसाइल हमारे पास नहीं है, कब्जे की शक्ल में हमारी बुनियादी जरूरियातें जिंदगी हमारे पास नहीं है, जिनका सौदा ये हुक्मरान, आजाद कश्मीर के हुक्मरान आपसे करते हैं और बदले में आपके नजरियात पे आपको खामोश रहना सिखाते हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ से भी तो कोई मुंतहिब होके क्या होगा नुमाइंदा असेंबली में, कोई यूनियन काउंसिल में, कोई किसी जगह पे। ये जिस इलाके में आज हम मौजूद हैं, फर्ज करें यहाँ आसपास आबादी है, यहाँ की किसी खातून को, किसी मर्द को, किसी बुजुर्ग को कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई तकलीफ हो जाती है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है, किसी खातून को ज़च्ची का जो है वो सामना है, तो कोई यहाँ पे ऐसी जो है इमरजेंसी की यूनिट मौजूद है जो कि उसको इब्तदाई तभी जो है मदद फराहम कर सके। ये आपको बड़े बड़े भाषण देंगे कि हमारी खवातीन, हमारा समाज, हमारा मजहब, ये हमारा फलां, हमारा फलां। और जब किसी खातून को बच्चा पैदा करने होने वाला होता है तो किसी गली मोहल्ले से चारपाई पे पहले तो उठाने के लिए 10 बंदे ढूंढे जाते हैं कि वो चारपाई उठा के उसको जो है रोड तक लाया जाए, फिर उसको गाड़ी में बिठाती है और कभी कोटली और कभी जो है हजीरा और पिंडी तक पहुंचाया जाता है। तब हमारी गैरत कहाँ होती है? पूछे इन हुक्मरानों से जो आपको आगे लालच और आपको आगे वसवसे और आपके दिलों में डर और खौफ पैदा करते हैं कि तहरीक आजादी के अंदर शामिल नहीं होना, उस मुख्तार कश्मीर का नाम नहीं लेना, इनके साथ नहीं चलना। उस वक्त उनसे पूछा करें कि हमारी जो यहाँ पे जो तकलीफें हैं उनको मजीद उनमें इजाफा करने के लिए तहरीक आजादी के जो ऊपर चलने वाले लोग हैं वो इसके कसूरवार नहीं है, इसके कसूरवार तुम लोग हो। हमारी बहन बेटी आज तकलीफ में रास्ते में मर जाती है तो इसके कसूरवार ये हुक्मरान है, यहाँ के नुमाइंदे हैं। वो यहाँ उसका कसूरवार काशिफ हमीद नहीं है, उसका कसूरवार अभी मेरे भाई जो यहाँ पे बात करके गए हैं वो नहीं है, या कोई और जो गली कूचे और चौराहे में आके मुजाहमत की बात करता है वो नहीं है। ये तो आपको उनके खिलाफ लड़ना सिखाते हैं, उन सरमायादारों के, उन वडेरों के, उन काबजीन के, उनके सहूलतकारों के, असेंबली में बैठे इन गुमाश्तों के खिलाफ लड़ना सिखाते हैं। आपको बताते हैं कि निकले बाहर और बोले इनके खिलाफ, अपनी आवाज बुलंद करें। जितने खामोश रहेंगे उतने तकलीफ में रहेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो गैर रियासती जमातों से मुंतहिब करके वजीर आजम और सियासतदान बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर यहाँ पे हमारे ऊपर आके जो है वो नस्ब कर दिए जाते हैं, हमारे सरों पे बैठा दिए जाते हैं और वो आए दिन कभी किसी शक्ल में बोली लगाते फिरते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों की, कभी बाशिंदा रियासत कानून खत्म करने की कोशिशों में सरगर्दा नजर आते हैं, कभी मर्दमशुमारी के उसमें नजर आते हैं और कभी किसी को प्लाट अलाट कर रहे हैं, कभी किसी को जो है वो किसी के वडेरे को जो है यहाँ पे घर बनाने की इजाजत दे रहे हैं। अगर इतनी कश्मीरियों के लिए इतनी तकलीफ है तुम्हारे दिल में तो सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर के कदीमी रास्ते बहाल करो, शोंडन टनल को खोलो ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग रियासत आजाद कश्मीर के साथ जुड़ सके, आजाद कश्मीर के लोग श्रीनगर के साथ जुड़ सके, ताकि ये रियासत एक जो है वो मुमलकत की शक्ल में नजर आ सके और यहाँ पे अभी कोई बात हो सके कि यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा और यहाँ पे कोई आजादी की बात की जाएगी। उससे पहले ही हर तरह के रास्ते और हर तरह के बंद जो है वो बांध रखे हैं, हमारे निसाब पे कब्जा किया, हमारे रास्ते बंद किए, हमारे वसाइल लूटे, हर तरह से हमें जो है इन्होंने इस तरह जकड़ के रखा है कि कोई जो है वो इनके कब्जे के खिलाफ न चला जाए। इसके बावजूद भी आज आप देखें ये दूर दराज इलाके में, ये ठंडी कसी में देखें
देखें, आज इन नौजवानों और इनको बुजुर्गों को देखें, यहाँ ये आजादी की तड़प लेके बैठे हैं, यहाँ इनको किसी ने पैसे देके बैठने में मजबूर नहीं किया। अगर यही इतना ही प्रोग्राम किसी नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी का होता तो उनके हर चेहराजात देखने वाले जो है वो गिनने वाले होते। पूछे काशिफ हमीद से ये जलसा उसने कैसे मुनक्कद किया है। आपने जो कारकुनान है उनकी जेबों से खून पसीने के जो है वो कमाई से, अपनी हक हलाल की कमाई से आज इंतजाम मुकम्मल किए और आप लोगों को यहाँ बैठने का मौका फराहम किया। यही ऐसे ही नौजवान जो है इस कौम की तकदीर बदलेंगे। ये जिनके पीछे हमारे लोग चलते हैं, जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे वोट देने जाते हैं, वो आपकी तकदीर कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने आपको गिरवी रखा हुआ है, लाड़काना, बनीगाला और ड्राइविंग किया। वो उन्हीं आपके टैक्सों का पैसा इकट्ठा करके वो जाके उनकी झोलियों में डाल के आते हैं और आपके बच्चे यहाँ भूखे मरते हैं, कभी आटे के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी दवाई के लिए, कभी स्कूल में आला तालीम के लिए, कभी खेलों के मैदान के लिए, हर तरह की बुनियादी जरूरियात के लिए आपके बच्चे यहाँ पे आज मर रहे हैं और वो ऐशी की जिंदगियां बसर कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो एक पॉइंट है, जो एक एजेंडा है जिसको समझने की जरूरत है, वो यही है। हक और सच पे चलने वाले लोग यही हैं जो आज इस पंडाल में मौजूद हैं। हक और सच पे चलने वाले लोग यही हैं जो हर गली कूचे में जाके आपको बताते हैं कि आपके मुल्क पे दो मुल्कों का कब्जा है और आपने उनसे छुटकारा हासिल करना है। और ये कब्जा जो है, इसके अंदर ही तमाम तकलीफें हैं। जब इससे छुटकारा हासिल होगा तो तमाम तकलीफें और परेशानियां हमारी दूर हो जाएगी। और यहाँ मैं नहीं बात करना चाहती थी, इश्तियाक भाई ने यहाँ पे बात की, तो हमारा ज़र्फ इतना नहीं है कि हम स्टेज से, और आज तक इतने सालों में हमने कभी उनको जो है वो स्टेज से महत्व होकर कभी